Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. You may write to support at CoinDCX or raise a request on CoinDCX customer support. Hello, hi, namaste everyone. Welcome back to another episode of Crypto Weekly News by CoinDCX. मैं हूँ रिया यादव आपकी होस्ट एंड आई हैव रोशन हियर विद मी टुडे और हम डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते क्रिप्टो के वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, क्या इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, हमारे ओपिनियंस क्या हैं उसको लेके. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. हाय रोशन, कैसे हैं आप? Hi Ria, hi everyone. काफ़ी अच्छा, thanks a lot for introducing. Let's get started. Markets की तरह तो नहीं, but I'm better. Yes. So I think we can get started with how the market looks today, right? क्योंकि यही सबके दिमाग में चल रहा है अभी मार्केट का क्या हाल है. एंड क्विकली सीइंग हमारा क्रिप्टो मार्केट कैप, इट हैज स्लिड डाउन फ्रॉम $1 ट्रिलियन मार्क. हम अभी 900 बिलियन पे बैठे हैं, विच इज प्रिटी बैड कंसिडरिंग हम इतने टाइम से $1 ट्रिलियन मार्क पे थे. बिटकॉइन has thought of recovered. We're now at $20,000. We touched $18,000, man, which is again a new low in the recent Catastrophic. time. Yes, and Ethereum again, it bounced back from 1,000. It went under $1,000 and then Yeah, it's around. bounced back up. So I don't know. Let's see how the markets are. पर conditions तो काफी खराब है. हर किसी का थोड़ा दिवाला टाइप निकला हुआ है. That's how people see it, right? And a lot of us are, again, as we talked about in the previous session, हम सब first time experiences हैं of एक ऐसा bear market. तो हमें तो ज़्यादा ही catastrophic लग रहा है जैसे आप बोल रहे थे. नहीं, But एक्चुअली आप हमारे जनरेशन ने एक्चुअली काफ़ी कम साइकिल्स देखे. आई डोंट थिंक जो भी व्यूअर्स होंगे उनमें से किसी ने भी पहले कोई मार्केट डाउनटर्न या बेयर साइकिल और रिसेशन साइकिल इस टाइप की चीज़ें देखी है, unless the people who did something in 2008 or something. हमने बस वो मूवी बिग शॉट में सब देखा है. इन रियल लाइफ वी डोंट रियली नो how that recession was. The Yeah. Great Recession. I don't know why it's called the Great Recession. There was nothing great about it. I mean, this was fun, guys. This was a fun. But anyway, so moving on to the headlines again, as we talk about it, कि $1 trillion से नीचे चला गया है हमारा market. What can we do about it? We'll discuss कि Elon Musk के ऊपर एक lawsuit फेंका गया and he's still surviving. The Dogecoin is still surviving. We'll talk about Solana Stop project जिसके अंदर liquidation crisis हो गए थोड़े, which we've seen lately in a lot of projects. मगर we'll discuss about it. We'll come back with Roshan and discuss about it. और Yep. साउथ कोरिया में क्रिप्टो टैक्स हट गया है. उन्हें सोच रहे थे लगाएंगे क्रिप्टो टैक्स, बट they'll now put it after 2 years. Anyway, so moving on to the first news. हमारा again, as catastrophic as it is, but Bitcoin had fallen down to $18,000, which was apparently 2017 का high, right? ETH, and so this is थोड़ा लो एज अ सेंटिमेंट वैल्यू हम सब के लिए. इथीरियम कम है एंड दिस इज द न्यूज दैट एवरीवन टॉकिंग अबाउट, राइट? माइक्रो स्ट्रैटेजी, माइकल सेलर. तो हाँ, तो रोशन, ओवर टू यार. जस्ट प्लीज एनलाइटन अस कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, विल बिटकॉइन गो टू $10,000? So over to you. Absolutely. Thanks, Ria. आपने almost सारा चीज cover कर दिया है, but there is a lot happening during this week and during this time. Bitcoin and crypto in general is at a very, you can say, it could form a really big inflection point in future. But अभी के लिए तो यार Bitcoin का जो level है, like currently it's 20,500 के आसपास dollars. And 17,000 to 20,000 being one of the good supports, and 17k as again, sorry, 20k and 17k is a good range to be in. फिर इसके बाद के supports like 15k to 24k. So let's hope Bitcoin crosses that 24k wala mark soon. It's already growing. We are seeing some short term recovery, but इन जनरल अगर बात करें ना तो माइकल सेलर का आप बात कर रहे थे. ही सेड कि इन अकॉर्डिंग टू हिम सिंस 2020
Bitcoin has grown around 72%. And कोई भी और asset class, be it gold, S&P, Nasdaq, anything else except single family homes in the real estate asset class, इसके अलावा कोई भी इतना ज़्यादा रिटर्न दिया ही नहीं जितना बिटकॉइन दिया है. एंड ही क्लेम्स कि यार बिटकॉइन इज 10x better than any other thing. Although they are going through some Bitcoin crisis themselves, like बोला जा रहा था कि उनको मार्जिन कॉल आ जाएगा. तो सो मार्जिन कॉल क्या होता है कि जब आपको आप जब भी कुछ बोरो करते हैं, ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस जब बिटकॉइन बोरो करते हैं तो वो कुछ लेवरेज में बोरो करते हैं या फिर कुछ लोन में बोरो करते हैं. सो लेट्स से इन्होंने लोन लिया था ऑफ अराउंड $205 million फ्रॉम सिल्वरगेट बैंक टू बाय BTC. एंड इस लोन को कोलेटरलाइज करने के लिए, मतलब इसके कुछ गिरवी रखना पड़ेगा ना लोन ले रहे हो तो. सो वो गिरवी रखा था इन्होंने कुछ बिटकॉइंस. अब बिटकॉइन का वैल्यू इन्होंने एवरेज 30,000 के अराउंड बाई किया था, इनका एवरेज था. लेकिन वो बिटकॉइन 21,000 या उससे भी नीचे चला गया. सो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जब 21,000 चला जाएगा या उससे नीचे चला जाएगा तो उनको मार्जिन कॉल आ जाएगा. बट इट माइट हैव हैपेंड कि उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया कुछ कोलैटरल इन, मींस दे मस्ट हैव पम्प्ड मनी टू कोलैटरलाइज फर्दर, मतलब और थोड़े पैसे रख दिए गिरवी टू सेफ गार्ड देयर लोन. मे बी इसलिए उनको मार्जिन कॉल्स नहीं आए. बट अगेन ही देयर स्ट्रैटेजी विच इट सीम्स वुड बी कि यार डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, विच इज actually advised to a lot of people, although this is not a financial advice, but people can like dollar cost averaging में क्या होता है, क्या आपको नहीं पता कि बिटकॉइन नीचे जाएगा ऊपर जाएगा इन शॉर्ट टर्म, तो आप क्या करो, लेकिन आप काफी बुलिश हो कि यार 5 साल 10 साल के बाद तो दिस इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू विच विल बी ह्यूज इन अ ग्लोबल स्केल. एटलीस्ट अगर आपको ऐसा लगता है तो बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी कि हर SIP जैसा हर कुछ मंथ्स में, हर कुछ रेगुलर इंटरवल में जस्ट कीप बाइंग छोटे छोटे अमाउंट्स, सो दैट जब नीचे जाए ऊपर जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ता. इन लॉन्ग टर्म तो कि ऊपर ही जाने वाला है, अगर आपको ऐसा लगता है. सो देयर स्ट्रैटेजी इज दैट, एंड ही इज लुकिंग एट 10-year स्ट्रैटेजी. वी शुड लुक एट मार्केट साइकिल्स. क्रिप्टो के 4 साल के अराउंड होते हैं, so we can look at those levels. And one last point which I would mention in this news is कि यार बिटकॉइन का जो प्रीवियस लो था, प्रीवियस जब मार्केट डाउनटर्न हुआ था, जो हाईएस्ट पॉइंट था, आज उसको हम लोग ऐसा लोएस्ट पॉइंट बोल रहे हैं. एंड अगर आप ग्रोथ देखो तो इट हैज ऑलवेज ग्रोन. द क्रिप्टो मार्केट हैज ग्रोन सब्सटैंशियली. So it's highly unlikely, at least I don't believe the crypto market is going anywhere at all. Even if Bitcoin goes below 10,000, which is anything can happen when the Fed is involved and large entities are involved. But in the end, after decades, after years, the true potential of Web3 and true potential of crypto markets, crypto assets, ये आई थिंक लाइट में आएगा. एंड मार्केट्स भी वो रिफ्लेक्ट करेंगी. थोड़ा लीगलाइज होने की ज़रूरत है, थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने की ज़रूरत है. अभी जो काफ़ी सारे रैंडम प्रोजेक्ट्स आ गए थे वो सब हट जाएंगे और सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो बचेंगे, विच विल टेक इट टू अनदर लेवल. At least that's my hope. Yeah, I think we're all here for that hope. हम सब ये सेशन भी इसलिए करे, watchers, viewers हमारे भी इसीलिए है because they fundamentally believe in this, even though markets नीचे हैं. And I think if you zoom out the charts a little, you will see that higher highs, higher lows, you know. That is what an uptrend actually means. And swings, yes, cycles, yes, we understand 4 years or 3 years, whatever cycles we currently have. Magar in the longer run, if we believe fundamentally, it has to go up. It will go up, right? And that is what we're all here for. But again, at all points, always do your own research. We're just speculating. ऐसे बहुत सारे लोग people are saying, you know, it might go to $13,000. Some people are actually saying it might go to $5,000. Again, these are all just speculations. No one really knows what will happen. Let's just all wait and see. मगर जैसे रोशन ने बोला, having said that, आप अपना एवरेज नीचे जरूर कीजिएगा if you get a chance, if you would want to. And on that आप लोन मत लेना इसके लिए, एवरेज नीचे करने के लिए लोन मत लेना. बिल्कुल, लेवरेज भी अपनी लिमिट में ही कीजिए जितना भी आपको लेवरेज करना है. एंड ओके, लेवरेज की बात है, इलॉन मस्क आ गए हैं. दिस इज सच अ कॉन्ट्रडिक्शन टू हैव. बट अगेन ओके, सो इलॉन मस्क को
Elon Musk पे एक lawsuit फेंका गया which was 258 billion. ये number भी 258 particularly, you know, funny number. But Yeah. उसके उनका lawsuit हुआ saying कि you know Dogecoin is actually like a crypto pyramid scheme or something. And Right. irrespective of that, Elon Musk ने tweet किया I will support Dogecoin and it still plunged, it still pumped, right? तो Yeah, supporters 12%. कम्युनिटी के काफी अच्छे हैं, you know, as we've seen Dogecoin and Sheep के supporters are like crazy. ऐसे दोस्त होने चाहिए यार हमारे, मतलब at all points they will support you. But yeah, what do you have to say for this यार, Roshan? So to give a context, एक यूएस का इंसान था, he sued Elon Musk and उसकी related companies saying they are involved in kind of a racket to inflate, मतलब डोजकॉइन का प्राइसेस बढ़ाने के लिए, और उससे वो पर्सनल गेन्स कर रहे हैं, इस टाइप का उन्होंने क्लेम किया. उन्होंने ये भी बोला कि डोजकॉइन कोई लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसका कोई अंडरलाइंग वैल्यू है, एंड फिर भी ये लोग अपने इन्वेस्टर्स एंड आम जनता को इसको खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. दैट हिंदी. सो सो इसके लिए इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है दिस 258 बिलियन, विच इज ह्यूज यार. किसी पे 300 250 260 बिलियन डॉलर का लॉस आउट करना है, इट्स लाइक ह्यूज. सो शुरुआत में तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया था एलॉन मस्क ने रिगार्डिंग दिस पॉइंट, बट सिंस इस बंदे ने, although I'm not taking his name, he said कि डोजकॉइन एक गैम्बलिंग टाइप का है एंड यूएस में उसको गैम्बलिंग जैसा ट्रीट करना चाहिए. बट हुआ क्या कि एलॉन मस्क आए, he just said कि I will keep supporting Dogecoin instead of anything and the markets jumped. अभी 7-day एवरेज के हिसाब से अराउंड 10% अप है, विच इज लाइक ओके. बाकी सारी चीजें धीरे धीरे रिकवर कर रही है, बट डोजकॉइन अपने आप टू द मून चल रहा है. बट एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस मार्केटिंग ऑफ थिंग्स. लेट्स अंडरस्टैंड कि यार एलॉन मस्क सपोर्ट क्यों करते हैं इसको. सो देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स. उन्होंने एक बार बोला था कि ऑल्दो वो लोग कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, सिलिकॉन वैली के कोई टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, बट मतलब उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि वो बहुत इन डेप्थ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते. लेकिन जो सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि डोजकॉइन के जो फाउंडर्स हैं, दे आर नॉट एकदम सिलिकॉन वैली एक्सपर्ट, एंड पूरा मीम जैसा स्टार्ट हुआ था. सो दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू सपोर्ट डोज. कि यार इट फेल्ट लाइक इसके पीछे कोई मोटिव, कोई हिडन एजेंडा नहीं है. इट वाज जस्ट स्टार्टेड एज अ मॉकरी काइंड ऑफ थिंग एंड मीम काइंड ऑफ थिंग, एंड ये इट टुक ऑफ. सो देयर इज नो सिंगल पर्सन जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा, एंड दिस इज लाइक एक ऐसा एसेट जो कोई भी पर्सनल गेन्स के लिए नहीं लॉन्च करेगा. सो दैट्स हिज व्यू, and I think somewhat that is justified also. And for people who say कि यार इसके नीचे underlying value नहीं है, so यार हम लोग का जो रुपी है fiat currency, that's also a paper जिस पे बस एक entity which is our central banks जब sign कर देती है, and people start trusting कि हाँ, अगर मैं ये बगल वाले दुकानदार को दूंगा तो इस पेपर के बदले वो मेरे को चॉकलेट्स देगा या वॉट एवर ग्रॉसरीज और एनीथिंग विच यू वांट टू बाई. So it's just a piece of paper. The trust is when people start using that. So Dogecoin का भी साथ ऐसा, या फिर कोई भी क्रिप्टो के साथ ऐसा हो सकता है. Although there is no physical entity backing this, लेकिन people just start trusting this particular thing कि यार हाँ, if I give my crypto to Ria, अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो you will be willing to accept that crypto as a form of payment. आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हो, दैट हैज द वैल्यू. मतलब इट्स लाइक बार्टर सिस्टम. Yeah, money is what we place value in, right? That is what money is in simple language. आप और मैंने मान लिया कि ये पैसे है तो ये पैसे है. जैसे पहले seashells होते थे, right? All of these were considered money. जो भी आप मानो वो है, that is true, that is what money is. तो fair point, but I think दोनों, like as every coin has both the sides. तो I think इसका भी एक side ये है कि Elon Musk as an individual he है, it's his opinion, he's not giving out financial advice, that is fair. But I think also on the other hand, as we see rug pulls, right? वो भी लोग कोई, I mean, I'm not saying this is a rug pull, I'm just saying this is a perspective that people need to build up कि no person, no crypto, no project is perfect, you know. It's nothing ki this is guaranteed amazing or this guaranteed this is going to give you guaranteed returns, right? Because again, जो whales हैं, they will take advantage of the market movement.
And I'm not saying Elon Musk हाँ is a whale, but it's just a perspective that people, audience need to have. कि दोनों sides आप देखें कि anything can happen any day by anyone. So just be very very डेफिनेटली। cautious, because it's your money at the end of the day. आपने तो काफ़ी एक चीज़ बहुत अच्छा बोला कि अगर आपके पास, चलो मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होता तो मैं ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता और ज़्यादा रिटर्न के लिए आई वुड हैव फॉट एंड मेनी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड हैव फॉट कि अगर यार उनके पास ज़्यादा पैसा है तो दे विल इन्वेस्ट, दे विल वांट कि अदर पीपल आल्सो इन्वेस्ट सो द प्राइसेस गो अप। दैट्स नॉट, दैट्स बिजनेस, दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। उसमें कुछ गलत या सही नहीं है। एंड डेफिनेटली दूसरा पॉइंट कि कोई भी एक क्रिप्टो इज नॉट अल्टीमेट थिंग, कोई एक फिएट करेंसी इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। देयर आर फिएट करेंसीज 180 कंट्री या फिर 200 कंट्री है तो 200 अलग फिएट्स हैं। सो या फिर मतलब उससे कम है एक्चुअली, बट देयर आर मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ फिएट करेंसीज। सो वैसे ही क्रिप्टो भी होगा, इट मोर रेगुलेटेड, मोर रोबस्ट एंड विथ मोर लॉजिक। यस। fair point. Fair point. Good understanding. एंड रोशन, इस पे हमें आपकी एक्सपर्टीज अच्छे से चाहिए होगी टू एक्सप्लेन टू ऑल आवर व्यूअर्स कि ये सोलेंट है क्या और सोलाना का जो टॉप प्रोजेक्ट है इसमें लिक्विडेशन के क्राइसिस कैसे आए, व्हाट रियली हैपेंड, एंड लोग वोटिंग क्यों कर रहे हैं ऑन दैट वन पर्टिकुलर पर्सन जिसने ये पूरा हैवो खड़ा कर दिया, व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, सो सबसे पहले सोलाना का एक टॉप लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है सोलेंड। सो यहाँ पर एक वॉलेट है विच इज सुडोनिमस। उसके पास 95% ऑफ टोटल सोलेंड का जो भी वैल्यूज था वो लॉक था। इट्स लाइक 20, अगर आप टोटल नंबर ऑफ एसेट जो वल्नरेबल है उसके हिसाब से देखें तो $20 मिलियन ऑफ एसेट स्टेक में, रिस्क में है। अभी हुआ क्या कि जब भी ऐसा लार्ज पोजीशन, लार्ज, सो जो भी ऐसे वॉलेट्स होते हैं, बड़े वॉलेट्स, वो एक तो कोलैटरल रख के लेवरेज्ड पोजीशन से यूज करते हैं, जैसा कि माइकल सेलर वाले पहले न्यूज में हमने देखा। सो अभी क्या होगा कि इस पर्टिकुलर वॉलेट का जितना उन्होंने कोलैटरल रखा था वो सफिशिएंट नहीं है। सो उनको मार्जिन वो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उन्हें पूरा जो भी वैल्यू होगा उसको सेल करके, जो भी जिन लोगों ने भी जहां पर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना पैसा वापस लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट मतलब सब निकल जाएगा वहां से। सो इट्स लाइक 20 मिलियन वर्थ ऑफ सोलाना सोल टोकन। अभी ये बहुत बड़ा पोजीशन है फॉर अ प्लेटफॉर्म। इससे ना काफी सारी चीजें दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी सोलाना का सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा। there are a lot of issues which are happening inside the blockchain, and एक उनका one of the top projects getting so much hampered or affected by one liquidation process, तो ये काफी ज्यादा इशू होगा। तो इसके लिए उन्होंने वोटिंग कॉल की। वोटिंग में उन्होंने पहला 2 वोटिंग्स हुई। पहला वोटिंग में जो लास्ट संडे हुई उसमें उन्होंने रखा कि आप वोट कर सकते हो टू two criterias. One is enact special margin requirements for large whales. So ऐसे जो भी बड़े अकाउंट्स होंगे like constituting 20% या उससे ज्यादा of assets, तो उन लोगों के लिए एक अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर जब भी ऐसा होगा, एक लिक्विडेशन प्रोसेसेस के लिए फॉर दीज वेल अकाउंट्स एक इमरजेंसी पावर मिलेगा सोलेंड को कि वो rather than आपको लिक्विडेट होना है तो कैसे करोगे आप? अगर एक डिसेंट्रलाइज्ड डीफाई प्लेटफॉर्म हो तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के थ्रू आप लिक्विडेट करते हो। बट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एकदम वॉलेटाइल होती हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवर द काउंटर विच इज लाइक आप पीछे बैक ऑफ द माइंड एक डील करो विच इज अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट काइंड ऑफ डील, एंड वहां पर आप लिक्विडेट कर दो, वहां पर सेल कर दो। सो वन थिंग इज कि आपके पास अगर कुछ सोल है, यू गो टू द एनी ऑफ द एक्सचेंजेस, लेट्स से आपके पास स्टॉक है कोई, यू गो टू द आरबीआई, सॉरी एनी ब्रोकर, लेट्स से Zerodha or anything, you sell it over there. Otherwise you can just come to me and we can transfer it over the counter, which is like एक ग्रे मार्केट, अलग मार्केट हो जाते हैं। उस केस में इतना प्राइसेस अफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन इस केस में होगा क्या कि
सोलेंट का इंटीग्रिटी पे सवाल उठने लगेगा कि यार तुम ऐसे कर सकते हो, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुम बोलते हो कि इम्यूटेबल कोड है और हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एंड नाउ यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट टू अदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स, विच इज नॉट राइट। सो उन्होंने फिर ये बहुत सारे लोगों ने हल्ला किया, तो उन्होंने सेकंड वोट क्या अभी जस्ट प्रपोजल दिया है, उसमें 3 चीजें हैं। पहला तो कि यार पहला जो वोट हुआ था जिसको 97% या उससे ज्यादा लोगों ने यस कर दिया था, उसको इनवैलिडेट कर देंगे कि लाइक कुछ भी नहीं हुआ, उसको स्क्रैप कर देंगे। एंड वोटिंग पीरियड एक दिन के लिए, वोटिंग पीरियड का लेंथ चेंज हो जाएगा, एंड दे विल by that time Solent will start working on a less drastic emergency power जो still volatility को कम कर पाएगी in the liquidation events, and still एक better solution provide कर पाएगी which is win-win for everyone, whale as well as people as well as the platform. Wow, that was very heavy. आई थिंक हमें एक और वीडियो बनाना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ यार, अगर आप चाहते हो कि हमें गवर्नेंस कैसे हाउ गवर्नेंस रियली वर्क्स, और वोटिंग कैसे होती है और कितने राइट्स मिलते हैं, देयर समथिंग एज क्वाड्रेटिक वोटिंग, एक्चुअल वोटिंग कितने टाइप्स की होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू वुड वांट टू नो अबाउट व्हाट रियली हैपेंड एंड व्हाट कुड हैपन इन अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. कभी समथिंग हैपेंस एंड उसके ऊपर वोटिंग हो गई कि दिस इज नॉट गोना वर्क फ्रॉम टुमारो, that goes against the smart contracts as we discussed, right? But I think this was pretty heavy. हमें थोड़ा digestion के लिए time I दीजिए please, Martin. I tried to explain as simply as possible. Simply, जिनको भी just one line अगर voting का समझना है, तो decentralized platforms में there is no single entity जो govern करती है. Like there is no board of directors कि यार हम जो decide करेंगे वही होगा. It's like पूरी community जो भी है, जिनके पास भी उन सब मेंबर्स को एक गवर्नेंस टोकन दिया जाता है, जिसके बेसिस पे कि यार इट्स लाइक वोटर आईडी कार्ड, जब आप वो दिखाते हो तब आप वोट कर सकते हो. उस वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फॉलो होगा इन दैट डेमोक्रेसी विच इज द प्लेटफॉर्म. सो या Correct. Simpler terms, जैसे we're on YouTube right now. YouTube is a central authority. यहाँ पे एक इंसान और एक body of directors हैं जो सब decisions लेते हैं कि कल से for instance YouTube बंद हो जाएगा. But एक डिसलाइक बटन हटा देंगे. डिसलाइक बटन हटा दो, करेक्ट. बट एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में कोई एक इंसान तो है नहीं डिसीजंस लेने के लिए, सो हेंस वी हैव गवर्नेंस मैकेनिज्म्स एंड पीपल हु होल्ड द टोकन. सपोज आपके पास सोल का टोकन है, यू हैव द राइट टू वोट. हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू a better news for someone at least in this world कि भाई तो साउथ कोरिया में 20% पहले प्रपोज किया था क्रिप्टो टैक्स, मगर फिर उसको डिले कर दिया है. तो 2025 में आई थिंक दे विल इम्प्लीमेंट दिस अकॉर्डिंग टू देयर tax chief of I don't know how to pronounce that name. I'm probably going to say it wrongly, so I'll not attempt it even. It is what it is. Roshan, just tell us कि इंडिया में ऐसे कब होने वाला है, क्यों नहीं हो रहा है इंडिया में, and what would be the impact, had it been postponed. So we'd love to know about that. यार मुझे तो ऐसा लगता है ना कि साउथ को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस न्यूज़ कि यार उन्होंने डिले कर दिया जो टैक्सेशन 20% टैक्सेशन लाने वाले थे वो क्रिप्टो में. देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई यू वांट टू टैक्स सर्टेन थिंग. वन इज कि अगर आप हायर टैक्स करोगे तो पीपल विल बी लेस इंसेंटिवाइज्ड कि यार वो चीज़ करें, वो एक्टिविटी करें. हाँ, डीमोटिवेटिंग हो जाता है. और जैसे टैक्स कम कर देते हो, सो इट्स लाइक फ्री. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे सेगमेंट भी इंडिया के छोटे लोगों, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए हैंडीक्राफ्ट्स में टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, जिसके कारण लोग और भी जो भी स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी सर्वाइव करना चाहते हैं उनके लिए कम बर्डन रहे ऑन देयर बैलेंस शीट, ऑन देयर कॉस्ट. तो अगर इंडिया ऐसा करता तो पहला तो अडॉप्शन, जो हमने एक बहुत मेजर चीज देखी कि सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का वैल्यू काफी ड्रॉप कर गया था. सो वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम काफी लाइक 70-90%, बहुत ही खराब सिचुएशन. तो लेस पीपल आर इंसेंटिवाइज्ड कि यार वो ट्रेड करें, क्योंकि जब भी ट्रेड करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे. There are two things which people can do in such a scenario. One, they just stop trading, or two, just pay the taxes and keep on trading and earn higher returns compared to the taxes to offset the losses. So एक तो ये होता है कि यार वो ट्रेडिंग वॉल्यूम बच जाता,
दूसरा अडॉप्शन शायद इंक्रीज कर सकते थे. आई ऑल्सो फील कि यार जब भी टैक्सेशन का बात कर रहे हैं, वी शुड इंसेंटिवाइज क्रिप्टो बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ लोकल प्रोडक्ट. This Right. could be one of the key things which pushes India to the forefront and accelerate its growth as a developed country. सो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाएगा, हम लोग ग्लोबल स्केल पे चले जाएंगे. जो भी ग्लोबल कंपनीज हैं विच आर लाइक $multi-billion कंपनीज स्टार्टिंग अप इन क्रिप्टो मार्केट्स, वो इंडिया को एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन चूज करेगी टू सेट अप हेडक्वार्टर्स. लेट्स से दूसरी कंपनीज आ रही है यहाँ पे, यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा. एंड जो सिंगापुर ने किया था ड्यूरिंग अर्ली, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, we can do things like that to safeguard ourselves or to push the development in the country. That is one way. If government believes कि हाँ crypto is not something which will take the powers away, and this can be regulated, or this can be at least some kind of legality should be around, some kind of standardization should be around. Like payments की जो भी companies होती है, they have their own standardization which is community driven. एक स्टैंडर्ड बना हुआ है. इथीरियम का जैसे टोकन का देखो तो ERC इज अ स्टैंडर्ड. सो ऐसे अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो गई, बी इट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट और बी इट कम्युनिटी रेगुलेटेड, एंड गवर्नमेंट्स लाइक सपोर्ट दैट, दे कैन लेवरेज दिस टू ग्रो द country even faster. At least that's Right. what I believe. And we've There are seen pros and cons also, but yeah. right. We've seen examples for this, right? Like Dubai. Everyone's, I think Dubai is now synonymous to crypto, right? And a lot of other countries, now that they've reduced अपना taxation limit, और काफी लोगों ने तो हटा ही दिया है. So वहाँ पे we have seen opportunities, like a sea of opportunities. People are moving there. वहाँ पे company setup हो रही हैं, कितना ज़्यादा fast growth हो रहा है, right? So I wouldn't want India to miss that bus. And I hope कि again, crypto tax के ऊपर we talk about every time and everyone's suffering. But okay, I think governments will listen and do the best Just at that. आई थिंक इफ यू कैलकुलेट इट करेक्टली, तो क्रिप्टो की जो कंपनीज हैं वो उनको अगर टैक्स कम करके यू जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम कॉर्पोरेट साइड्स, और यू जनरेट GSTs, और यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट्स, उसके थ्रू जो इनकम होगा गवर्नमेंट का, आई फील दैट विल बी वे 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 हायर देन क्रिप्टो के टैक्सेशन से जो चीज़ें होंगी. एंड Right, ऑल्सो but थोड़ा government is, कंट्रोल इश्यूज. yeah, I don't think government is doing this to earn money. They're doing this to demoralize or Maintain. demotivate people, to Yeah. because I think they have their own fair reasons, because they're concerned about safety, और अपने जनता की safety तो जरूरी है. I think that is the हाँ. narrative and that is the high road that governments are taking. I hope I think CBDC आने के बाद this could pretty much solve itself. Let's hope for that. And on that Yeah, note, I there think are. we'll move on to a more What's up? cheerful conversation on the metaverse. Metaverse हमेशा एक fun topic रहता है, right? And in Web3 segment today we're talking about metaverse, और एक बहुत ही interesting report आई है McKinsey से, which talks about metaverse could actually be a $5 trillion market or a business by 2030. I think पहले ही हो जाना चाहिए यार, पहले हो जाएगा, by the scale that we're actually growing. But shed some light, Roshan, on this. $5 trillion, pretty cool stuff. Crypto as a whole, I expect कि बहुत, so no one expected it to grow so fast. जब भी explosion होता है, it's compounding effect which happens. So Right. अगर जिस हिसाब से technologies work कर रही हैं, if you try any new VRs which are coming, they have substantially improved the entire thing. There are haptics coming in. There are now there is a treadmill in which omnidirectional treadmill where you can run in any direction. So काफी सारे developments हो रहे हैं, and जिस द पेस ऑफ डेवलपमेंट नो वन कैन गेस. इट्स लाइक कि फ्यूचर में जब होगा तभी हम लोग देख पाएंगे. बट आई फील पेस ऑफ डेवलपमेंट इज कि बहुत ज़्यादा, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट हो रही हैं चीज़ों की. सो 2030 तक 5 ट्रिलियन
Definitely, it can happen, and there are like areas which they have mentioned, like social, entertainment, gaming, travel, shopping. All these are the areas where common people can enjoy metaverse. And just imagine, अभी जो हमारा discussion हो रहा है वो metaverse में हो रहा होता. We would have our own avatars kind of thing, and हम लोग पूरा immersive way में discuss कर पाते. We could have conducted a small entertainment activity. So ये सारे possibilities बहुत अच्छे हैं to avoid this technology. यार इसको just ignore नहीं किया जा सकता. This is coming. The only point is when, which no one can tell exactly, or no one can predict, and it will be at least again way earlier. So true, that's so true. और ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सिंपल सा नैरेटिव है ना कि हम साल बाय साल, दिन बाय दिन, we're being more digitalized, right? और digitalized version of today is the metaverse. और हम Absolutely. ऑलरेडी इतना एक्सेप्टेंस देख रहे हैं मेटावर्स का. इन द फ्यूचर it's tough to say no to that. I mean, who thought कि phones will be such craze? Who thought social media is going to be such a craze, right? Pehle, but then adoption, cool things get adopted soon. So yeah, that is on our take. That is our take on this report. आप एक बार पढ़ना जरूर. This is for everyone in the audience listening to us. कि बड़ा अच्छा सा, it's a very fun take. Please read this. And having said that, I think we'll move on to the next small segment ka part, and also a news, which is ki this hospital Yashoda, they've started their healthcare group on the metaverse. हमने देखा India is pretty forward, metaverse में. हमने शादी भी कर लिया एक metaverse में. हमारे इतने सारे stores जा रहे हैं. People, पप्पी लहरी का कुछ, he, so many other creators, pretty fun take on it. What do you have to say for that? हाँ यार, काफी अच्छा ग्रोथ है. मीन्स लाइक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मेटावर्स में जा रही है. अर्लियर ना फॉरेन कंपनीज वेर ऑलरेडी डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, लाइक सिमुलेशन. दे वर क्रिएटिंग पूरा इंटायर सिटीज को मेटावर्स में ट्रांसफॉर्म करके उस पर रियलिस्टिक मॉडलिंग करके उस पर सिमुलेशंस कर रहे थे. BMW अपनी पूरी फैक्ट्रीज का एक पूरा मेटावर्स में चीजें बना रही है एंड उसको सिमुलेट कर रही हैं टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी. सिटी में अगर आपको हॉटस्पॉट्स या फिर लेट्स से वाईफाई या कुछ सिग्नल, लेट्स से रिलायंस जियो है, उसे बैंगलोर का सिटी प्लानिंग करना है, एंड दे डेवलप अ मॉडल, वर्चुअल मॉडल ऑफ पूरा इंटायर बैंगलोर, एंड जो कि काफी बड़ा है एक्सेप्ट द एयरपोर्ट. बट तो दे कैन प्लेस कि हाँ, अगर उन्हें 6G लाना है तो ये एग्जैक्ट एरियाज होंगे जहां पर वो टावर्स प्लेस करेंगे, जिससे कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है. मेटावर्स में अगर लेट्स से, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि लेट्स से यू आर सो ऑपरेशंस को सिमुलेट करना कि हाँ ऑपरेशन जब हो रहा है तो यू कैन हैव अ हाइपर रियलिस्टिक मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमी टू अंडरस्टैंड कि यार चीज़ें कैसे चलती हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस. So this is really good. In fact, there is a series, Good Doctor करके, जहाँ पर I think doctors were already training with VR headsets on their heads, and Sweet. yeah, काफी interesting चीजें हैं. So people are already doing this. I am so glad कि India is becoming one of the forerunner in this space. Metaverse में शादियाँ, metaverse में parties, gaming, yeah, Concert. and now healthcare. Right. भाई मतलब Gucci, Nike के बाद सीधा यशोदा हॉस्पिटल. Pretty cool and fancy. Absolutely. Yeah, and I think that's all for today. I had a lot of fun discussing everything today. Thank you, Roshan, for imparting ऐसे बढ़िया सा knowledge हमको, and discussing so nicely जो भी crypto के world में हुआ है इस हफ्ते. मतलब actually, to be very honest, this session helps me and I think a lot of people, क्योंकि क्रिप्टो सीम्स लाइक दिस फार फेच थिंग जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? अगर आप और मैं उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे पार्टीज में होता है, राइट? यू गो टू अ पार्टी, पीपल आर डिस्कसिंग क्रिप्टो, सडनली इट बिकम्स फन.
तो अगर हम लोगों को दिखते क्रिप्टो के बारे में बात करते हुए और आसान लैंग्वेज में समझते हैं तो इट रियली हेल्प्स। आई थिंक एंड आई होप दैट हमारे व्यूअर्स भी ये समझते हैं यार। तो इफ यू थिंक दैट प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो, बताओ हमें आज का सेशन कैसा लगा आपको, एंड लेट अस नो इफ देयर आर एनी सजेशंस दैट यू वुड वांट अस टू पिक अप ऑन, और अगले हफ्ते क्या डिस्कस करना है, एनीथिंग इन पर्टिकुलर वो भी हमें बताइए। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी हैप्पी, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, एंड ज्यादा उदास मत होना यार, मार्केट्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। I think having said that, thank you so much, Roshan, again. See you in the next video. Bye bye. Thank you. Bye bye. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. You may write to support at CoinDCX or raise a request on CoinDCX customer support.